And down through these ages, the church world has got all these things all mixed up with traditions and so forth. और इन तमाम जमानों में कलीसियाई हल्का रस्मो रवाज और इसी तरह की गलत बातों में पड़ गया. And God always sends on the scene down through the Old Testament and new prophets. And the word of the Lord comes to the prophet. और खुदा हमेशा पुराने और नए अहदनामे में नबियों को मंजरे आम पर लाता रहा और खुदावंत का कलाम नबी के पास आता है. And how does it do it? It manifests the word of God. और वो इसका क्या करता है? वो खुदा के कलाम को जाहिर करता है. God's manifestation, that tells whether it's right or wrong. Nobody has to interpret it. The word interprets itself. और फिर खुदा का ज़हूर बताता है कि ये दुरुस्त है या गलत. किसी को इसकी तफसीर करने की जरूरत नहीं. कलाम खुद अपना मुफस्सर है. God promised it and there it happens. खुदा ने इसका वादा किया है और ऐसे ही होता है. What good does it do to say anything else about it? इसके बारे में कुछ और कहने में क्या फायदा है? Who is the sinful man that would try to say when God made a promise and God does it that interpretation is wrong? खताकार इंसान क्या है जो कहे कि ये तफसीर गलत है जब खुदा एक वादा करता है तो वो उसे पूरा करता है. That's God himself doing his own interpretation. Interpreting. ये खुदा खुद है जो आप अपना तर्जमान होते हुए अपनी तर्जमानी करता है. He don't need anybody to interpret him. He interprets himself by manifesting what he promised that he would do. उसे किसी शख्स की जरूरत नहीं कि उसकी तर्जमानी करे, इसलिए कि जिस बात का उसने वादा किया है वो उसको जाहिर करके खुद तर्जमानी करता है कि वो ऐसा करेगा. Oh, if the church could only see that and see the promises that's allotted for each age. हो अगर कलीसिया सिर्फ उसे देख सके और इन वादों को समझ सके जो हर जमाने के लिए किए गए हैं. All other ages, God has sent on the scene, even down through the 7 church ages, and has manifested everything that He promised to do. तमाम जमाने जो खुदा मंजर पर लाया, हत्ता के 7 कलीसियाई जमानों में भी जो कि उसने करने का वादा किया था उसको जाहिर किया. Everything, there's not one thing left undone. यहाँ तक कि हर एक चीज इनमें से एक भी चीज पूरी हुए बगैर ना रही. Exactly what He said He would do, that He did. बिल्कुल जैसा उसने फरमाया कि वो करेगा उसने वैसा ही किया. Because when God said back there in Isaiah, He said a virgin shall conceive. And she did. क्योंकि जब खुदा ने गुजरे दिनों में यशायाह से कहा, उसने फरमाया कि एक कुंवारी हामला होगी और वो हामला हुई. Now who can interpret that? God done the interpretation. अब इसकी तफसीर कौन कर सकता है? खुदा ने खुद इसकी तफसीर की. He said a virgin shall conceive and she conceived. उसने कहा कि एक कुंवारी हामला होगी और वो हामला हुई. Now nothing can be said about that because God said she would and she did it. Amen. अब आप क्या हैं? आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि खुदा ने कहा कि वो हामला होगी और वो हुई. But the church was too blind then to see it. लेकिन कलीसिया इसको देखने के लिए बिल्कुल अंधी हो चुकी थी. See, they had their own idea of it. It was too different than what they was expecting. देखें, इसके बारे में उसके अपने नजरियात थे, इसलिए जिस तरह वो तवक्को कर रहे थे ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ. Peter here was referring back. He said, God manifested Christ by His word. He said, this is my beloved son. पतरस यहाँ पिछला हवाला दे रहा था. उसने कहा खुदा ने मसीह को अपने कलाम से जाहिर किया. उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है. These believers were standing there and Christ was the manifestation of God. ये ईमानदार वहाँ खड़े थे. मसीह खुदा का ज़हूर था. He always manifested Christ by His word because Christ is the word. He manifests always. चूंकि मसीह कलाम है इसलिए उसने मसीह को हमेशा अपने कलाम के वसीले जाहिर किया. वो हमेशा ऐसे ही जाहिर करता है. When He said in the days of Noah, Christ was in Noah. Do you believe that? इसलिए नूह के दिनों में मसीह नूह के अंदर था. क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? Noah said it's going to rain. There will be a rain, the earth will be destroyed. नूह ने कहा बारिश होने वाली है, बारिश जरूर होगी, जमीन बर्बाद हो जाएगी. It rained. That didn't need any interpretation. It rained because God in Noah said it's going to rain. तो बारिश हुई. अब इसकी तफसीर करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि खुदा ने नूह के अंदर होकर कहा कि बारिश होगी तो बारिश हुई. He was a prophet. Hallelujah. And the evidence was that what he said come to pass. So they don't need to interpret that. क्योंकि नूह नबी था. इसका सबूत ये था कि जो कुछ उसने कहा वो होकर रहा, इसलिए उनको इसकी तफसीर करने की जरूरत नहीं थी. Some of them around said, this man don't know what he's talking about. हो सकता है कि इर्द गिर्द कुछ लोग कहते हों
इस शख्स को पता नहीं कि ये क्या कहे जा रहा है, But God had always promised that there be one among you who's spiritual, a prophet, and what He says comes to pass, then hear it. That's right, because it's true. लेकिन खुदा ने हमेशा ये वादा किया कि अगर तुम में कोई रूहानी या नबी हो और जो कुछ वो कहे और वो बात वकू में आए तो तुम उसकी सुनना। ये दुरुस्त बात है, इसलिए कि ये सच है। It must be in accordance with the Word. And Noah was in accordance with the Word. इसका कलाम के मुताबिक होना जरूरी है और नूह कलाम के मुताबिक था। When he prophesied it's going to rain, and it rained. जब उसने बारिश होने की नबूवत की तो बारिश हुई। That didn't need any interpretation for that because it did just that. इसकी मजीद तफसीर की जरूरत नहीं क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही हुआ। Isaiah said a virgin shall conceive, and she did. यशायाह ने कहा एक कंवारी हामला होगी और वो हामला हुई। Now that was awful unusual. For it was many hundred years later before this virgin conceived. अब ये बात हैरत अंगेज तौर पर गैर मामूली थी। देखें, क्योंकि ये कुंवारी कई 100 सालों के बाद हमला हुई। It was so unusual until a good man by the name of Joseph, her husband, being a just man, and was not willing to make her a public example. ये इस कदर गैर मामूली बात थी कि यूसुफ नाम एक शख्स जो उसका शोहर था, एक रास्तबाज शख्स होने की वजह से उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। That good man in those days, how it must have been with Joseph when he was engaged, espoused to Mary. ये उन दिनों में रास्तबाज इंसान था और ये बात यूसुफ के लिए कैसी होनी चाहिए थी जबकि उसकी मंगनी मरियम के साथ हो चुकी थी। She was espoused in that day. To break that was just same as committing adultery. चूंकि मरियम की मंगनी हो चुकी थी, इसलिए उन दिनों में मंगनी को तोड़ना जनाकारी के बराबर था। And of course to Joseph it seemed like that Mary was trying to use him for a blockade or make him be a shield for her wrong. और बेशक यूसुफ के लिए ये ऐसे था कि मरियम अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही है और उसे एक पर्दा बनाना चाहती है। Because sure she was found to be a mother, not being married, only engaged. क्योंकि मंगनी के दौरान ही वो हामला पाई गई थी, क्योंकि अभी उनकी शादी ना हुई थी। A trick like that would be stoned to death. It had to be by the law. ये एक ऐसी फरेबकारी है जिसकी सजा संसार करके मौत के हवाले करना है और शरीयत के मुताबिक उसे संसार होना पड़ता। And Joseph, her husband, was a just man, a very just man. He believed God. लेकिन उसका शोहर यूसुफ एक रास्तबाज, नहायती रास्तबाज इंसान था और वो खुदा पर ईमान रखता था। And when she looked at him with those lovely big soft eyes and say, और जब मरियम ने मोहब्बत भरी और बड़ी साफ नजरों से उसकी तरफ देखकर कहा होगा, Joseph, Gabriel, the archangel, visit me and told me that I was going to conceive knowing no man. यूसुफ, मुकर्रब फरिश्ता जब्राइल ने मेरे पास आकर कहा था कि मैं किसी मर्द को जाने बगैर हमला होंगी। Now if Joseph were to just to look back in the scripture, the prophet said she'd do that. अब अगर यूसुफ पीछे मुड़कर कलाम मुकद्दस की तरफ देखता कि नबी ने कहा था कि एक कंवारी हामला होगी। It was only God interpreting his own word. But it was too unusual. ये सिर्फ खुदा खुद अपने कलाम की तर्जमानी कर रहा था, समझे, लेकिन ये बहुत ही गैर मामूली बात थी। That's what's the matter in any age. The word of God is foreign to people. It's too unusual. और ये वो बात है जो हर जमाने में होती चली आई है। लोगों के लिए खुदा का कलाम अजनबी है, ये बहुत ही गैर मामूली है। God always does the unusual. It's unusual anywhere God is. खुदा हमेशा गैर मामूली काम करता है। जहाँ कहीं खुदा है वहाँ गैर मामूली काम होते हैं। It's against the systematics of the world. Because they've got things the way that they think it should be. But God comes in and does the unusual. ये दुनियावी निजाम के बिल्कुल उल्ट हैं, क्योंकि वो इन कामों को अपने तरीके से लेते हैं और सोचते हैं कि इन्हें इस तरह होना चाहिए, लेकिन खुदा दरमियान में आकर गैर मामूली काम करता है। How could this virgin conceive? He was honest. He sought God about it. एक कंवारी किस तरह हमला हो सकती है? यूसुफ दयानतदार था, इसलिए इस बात के लिए उसने खुदा को ढूंढा। And then God spoke to him in a dream and said, Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. और तब खुदा ने ख्वाब के जरिए उसके साथ कलाम किया और कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। God has overshadowed her. This is what's done it. खुदा ने उस पर साया डाला है
और ये खुदा है जिसने ऐसा किया है। Did you ever notice how God dealt with Joseph there? In a secondary way, in the way of a dream. क्या आपने कभी गौर किया कि खुदा ने यूसुफ के साथ क्या तरीका इख्तियार किया? एक नुमाइंदे के जरिए ख्वाब में रहनुमाई की। Now we know these dreams, we believe in dreams. I believe in dreams. अब हम ख्वाबों के बारे में जानते हैं और ख्वाबों पर यकीन करते हैं। मैं ख्वाबों का यकीन करता हूँ। Then God's always dealt with people in dreams, but dream is secondarily. See, it could be right or wrong unless it's interpreted. इसलिए कि खुदा हमेशा से ख्वाबों के जरिए लोगों से बात करता है, लेकिन ख्वाब दूसरे दर्जे पर हैं। देखें, जब तक उनकी ताबीर ना की जाए, ये दुरुस्त और गलत भी हो सकते हैं। But he didn't need any interpretation. It was God himself speaking directly to Joseph because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret. लेकिन इसको ताबीर की जरूरत ना महसूस हुई, क्योंकि उन दिनों में वहाँ कोई नबी ना था जो उसकी ताबीर कर सके। इसलिए खुदा ने यूसुफ के साथ बराह रास्त कलाम किया। There hadn't had a prophet for 400 years. उनके पास 400 साल से कोई नबी नहीं आया था। So the next best that God cared for the welfare of his own son was speak to Joseph through a dream and without interpretation. इसलिए दूसरा बेहतरीन तरीका था कि खुदा अपने बेटे की हिफाजत के लिए यूसुफ के साथ बराह रास्त बगैर किसी तर्जमान के बात करे। He said, the woman is right. That holy thing which is conceived in her is the Son of God. Amen. Didn't need any interpretation. उसने कहा, ये औरत दुरुस्त है और वो मौलूद मुकद्दस जो उसके पेट में है खुदा का बेटा है, इसलिए उसे किसी तफसीर की जरूरत ना पड़ी। God does his own interpreting. The honest, sincere hearts. खुदा दयानतदार और संजीदा दिलों के लिए खुद तर्जमानी करता है। Men and women that looks upon the thing that's mysterious, if you're honest and sincere and will believe, God has a way of interpreting it to you. उन मर्दों खवातीन के लिए जो वेद को मालूम करना चाहते हैं, बशर्ते कि आप दयानतदार और संजीदा हों और यकीन करें, और खुदा के पास आपके लिए इसकी तफसीर करने की राह है। First find out if it's a promise. पहले मालूम करें कि ये वादा है। If Joseph had just went back, got away from the traditions and went back to the Bible and find out, Isaiah said she's going to do that. अगर यूसुफ रवायात से हटकर बाइबल की तरफ देखता तो उसे मालूम होता कि यशायाह ने इस बात की नबूवत की थी कि एक कुंवारी हमला होगी। And the things that were spoke of in his birth and all about it was spoke by the scriptures, by the holy prophets, as Peter said. वो बातें जिनका जिक्र किया जा चुका था, उसकी पैदाइश और बाकी सब बातें जिनका कलाम में नबियों के जरिए जिक्र किया गया, जैसे पतरस भी उनका जिक्र करता है। And no man has the right to put any private interpretation of that. It's just exactly what God said would take place. और इसके लिए इंसान की किसी जाती तफसीर की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वही है जिसका खुदा ने जिक्र किया है कि ऐसे करेगा। He was a manifestation of the word of God promised for that day. वो खुदा के कलाम का ज़हूर था जो उस वक्त के लिए वादा किया गया था। God said it, so there it was. That settled it. खुदा ने ऐसा कहा और इसलिए ये वैसे ही होकर रहा, और ये बात तयशुदा है। Jesus said when he was on earth, when they couldn't understand his ministry, it was too great, too phenomenal. They couldn't understand him. यीशु ने कहा जब वो जमीन पर था तो लोग उसकी खिदमत को ना समझ सके। ये उनके लिए बहुत ही अजीब वाकया था, वो इसे ना समझ सके, बल्कि उनके लिए गैर मामूली बात थी और वो लोग यीशु को ना समझ सके। He said, search the scriptures. तो उसने कहा किताबे मुकद्दस में तलाश करो। I hope I'm not deafening you out there, blasting into that. मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी तवज्जो किताबे मुकद्दस से हटा नहीं रहा, बल्कि इसमें आवाज फूंकी जा रही है। Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Man, किताबे मुकद्दस से तलाश करो, क्योंकि तुम समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। समझे? they are the ones who tell you who I am. Yes. किताबे मुकद्दस ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बता सकती है कि मैं कौन हूँ। See, God allotted the word. That day was to be the manifestation of God. God, Emmanuel with us. देखें, खुदा ने कलाम को हिस्सा बा हिस्सा बयान किया है। वो खुदा के ज़हूर का दिन था, यानी इमैनुएल, खुदा हमारे साथ। His name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. And his name shall be called Emmanuel, God with us. उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, और वो इमैनुएल नाम से कहलाएगा, यानी खुदा हमारे साथ। God was in David. God was in Moses.
God, as God all the way through manifesting himself for that age. खुदा दाऊद में था, खुदा मूसा में था, खुदा पिछले तमाम जमानों में खुदा अपने आप को जाहिर करता रहा। But this age, a virgin shall conceive, and she'll bring forth a son, and he will be God with us. लेकिन इस जमाने में एक कंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और वो खुदा हमारे साथ होगा। That's what they crucified him for, making himself God, and also for breaking the Sabbath. यही वजूहत थी कि उन्होंने उसे मसलूब किया। पहली बात कि वो अपने आप को खुदा बनाता है और दूसरी बात वो सब्बत को तोड़ता है। He was God over the Sabbath, and he was God. मगर वो सब्बत का मालिक था, वो खुदा भी था। And he was not just an ordinary man or an ordinary prophet, yet he was an ordinary man and a prophet. But he was the God prophet. वो महज एक आम आदमी या महज एक नबी न था, लेकिन उनके नजदीक वो अभी तक एक आम आदमी या एक नबी था, बल्कि वो खुदा खुद नबी था। And he was the fulfilling of the word, exactly what God said he would do. और जिस तरह खुदा ने कहा था कि वो करेगा, ठीक उसी के मुताबिक वो कलाम की तकमील था। So which one of you can condemn me of sin? उसने कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? Search the scriptures, in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. कलाम मुकद्दस में तलाश करो, क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी है, और ये वो है जो मेरी गवाही देता है। But their traditions, they was living in a glare of another age. लेकिन उनकी रवायात जिनके अंदर वो रह रहे थे, वो किसी दूसरे गुजरे जमाने की झलक पेश कर रही थी। As I was preaching a few weeks ago, living in a glare is a mirage, the sun reflecting itself, and it's false. चंद हफ्ते गुजरे के मैं इसी मौजू पर मनादी कर रहा था, यानी झलक में जिंदगी बसर करना। झलक एक शराब है, जैसे चमकते सूरज का पानी में झूठा अक्स। And any glare of another age is a false reflection. और कोई भी झलक जो किसी और जमाने के साथ ताल्लुक रखती है, वो झूठा अक्स है। People always are walking in something that happened years ago. The Lutheran are walking in a Lutheran glare. लोग हमेशा झलक में चलने की कोशिश करते हैं, उसमें जो कई साल पहले हो चुका है। लूथरन कलीसिया लूथरन झलक के अंदर चल रही है।